जी हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टुनाइट। मैं हूँ रोहान नदीम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन फॉर अनदर फ्रेश एपिसोड। दिस वाज गोइंग टू बी ऑल अबाउट फुटबॉल। आज हमारी ख़ास नज़रें जो हैं वो होंगी प्रीमियर लीग के रिजल्ट्स पे एंड ऑफ कोर्स we'll take an in-depth look at the points table and see how that race to the top is shaping up, because the action now is not just at the top but it's also pretty much at the bottom as well, and of course in the middle कौन सी teams हैं जो हमें अभी भी surprise कर सकती हैं. We'll talk about that और थोड़ा सा ला लीगा के ऊपर भी बात करेंगे. We've got three very special guests with us. But before going towards all of the in-depth football analysis, a quick look at the sporting news from around the world. Max Verstappen won the US Grand Prix in Austin, his 10th victory of the season, extending his Formula One World Championship lead over second place Lando Norris. Harry Maguire's late header sealed a 2-1 victory for Manchester United over rivals Liverpool at Anfield, ending United's 9-year winless streak at the venue. Elena Rybakina defeated Ekaterina Alexandrova 3-6, 6-0, 6-2 to claim her fifth WTA singles title at the Ningbo Open. Arsalan Ashe won his 7th EVO Championship title at the EVO France 2025. After losing the first set and forcing a bracket reset, Arsalan Ashe rallied to win the final set 3-2 using Nina Williams. This victory is his third EVO title on a different continent, solidifying his position as the undisputed Tekken greatest of all time. Raul Fernandez achieved his maiden MotoGP victory with a flawless performance at the Australian Grand Prix. Yannick Sinner successfully defended his Riyadh Six Kings Slam title, defeating world number 1 Carlos Alcaraz 6-2, 6-4 and winning a $6 million prize. Rafael Leao's second half brace secured a 2-1 win for AC Milan over Fiorentina, sending Milan to the top of the Serie A table. Sardar Tariq Ahmed has set a new milestone in Pakistan's endurance sports history by becoming the first Pakistani to complete 3 Ironman 70.3 races within an 11-week span. Speaking on the milestone, he said this journey was about more than just crossing finish lines. It was about proving what's possible when discipline, perseverance and belief come together. I'm proud to carry Pakistan's flag onto the global Ironman stage. The FIP Asia Paddle Cup qualifiers concluded in Doha, setting the final 8 fields for both the men's and women's competitions. Pakistan men's team has qualified for the main round of the competition. Gee, this was sporting news from all over the world, catching you up on what's going on, not just in football, but world sports. A short break here. When we come back, we will take a look at the EPL points table in detail and also talk about that United win, because हमारे studio में भी हमें join कर रहे हैं जी United fans, of course हमारे experts भी, but आज जो है थोड़ा सा हम उनके साथ fans की तरह discussion करेंगे, because of course it has been a long time coming. 9 years के बाद Anfield पे United ने मैच जीता है. We'll talk about all of that after this short break. Don't go anywhere, please. You're watching Sports Tonight. Welcome back. You're watching Sports Tonight and this is the football special. We will be talking of all things EPL और लास्ट में थोड़ा सा ला लीगा के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और एंड में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो एक बहुत एक्साइटिंग
news है when for all of the paddle lovers because there's so much paddle happening in Pakistan right now. लेकिन इस सबको what is this all going towards इसका हम एक discussion भी करेंगे, and of course we'll talk about what the future of paddle looks like for Pakistan. So stay tuned till the end of the episode. Quickly introducing all my wonderful guests today. सबसे पहले sports analyst Hassan Qureshi has joined us back. अस्सलाम वालेकुम. आज आप बहुत खुश भी लग रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम रोहा जी, आप बुलाती अच्छे टाइमों पे हैं तो हम खुश लगते हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. लॉन्ग टाइम कमिंग. उनके साथ जी हमारे एक और एक्सपर्ट है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट. You've seen him regularly on Sports Tonight. Hassan Azam is back in the studio and he is smiling as well. I wonder why. And I have a teammate as well, so I can share my happiness there. एक नहीं दो happiness जो है in this week. उनके साथ हमें join किया है another football expert, although इनको आप ज़्यादा क्रिकेट के हवाले से जानते हैं, but of course football, when it comes to football in Pakistan, this is a name you've seen recurring here and there. GM Islamabad United Rehan ul Haq has joined us back once again. Assalamu alaikum Rehan, and आपके आज के happiness levels क्या हैं? मैं मतलब 9 साल बाद इनको इतना खुश देख रहा हूँ दोनों को. तो ठीक है, मतलब बनता है, बट इट्स नेवर अ गुड साइन जब पाकिस्तान भी उसी वीकेंड जीता हो, यूनाइटेड फैंस भी उसी आज आप देखिए इनका पोस्चर डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा आज यूं करके एग्जैक्टली, मतलब डिफरेंट है. मतलब यू नो हु टू अकड़ के थे यूं बैठ के इसलिए ऐसे हो गए थे. और ये ज्यादा खुश इसलिए हैं कि इनके फेवरेट डिफेंडर ने जो इनको मैच जिताया, तो ये दोनों ज्यादा खुश इसलिए हैं असल में. एब्सोल्युटली. चले लेट्स स्टार्ट विद यू हसन कुरैशी. 2-1 जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता अगेंस्ट लिवरपूल एट एनफील्ड, जो कि 9 साल के बाद. एक तो हम बहुत ज़्यादा प्री हाइप में भी बात कर रहे थे कि कितना बड़ा मैच है, एंड हम अगर आप लोगों ने भी लास्ट वीक हमारा शो देखा हो तो हसन आजम ने भी यही बात की कि इतना बड़ा ओकेजन है कि यूनाइटेड के पास यही चांस है मैच जीतने का कि दे जस्ट प्रेस ऑन एंड गो as aggressive as they can, and somewhere they got that formula working for them. What are your thoughts on this scoreline, G? 2-1 Rivalry? What rivalry? Anyway, I think it's just important to look at the fact that when हम इसकी बात करें कि the aggregate score in those 9 years till United scored 2 goals last year was 28-2. Means 9 साल 8 साल United ने जाके 26 गोल खाए हैं एनफील्ड पे, एक गोल नहीं किया. And then Liverpool was coming and consistently winning at Old Trafford also. They got big wins. Yesterday was a big test. एक तो हम obviously score की तो बात कर रहे हैं. It's the first time Ruben Amorim has won back-to-back matches in the Premier League since he was hired almost a year ago. United needed this. Did it look like it was going to happen? No, it did not look like it. But they got the right start, and then they weathered the Liverpool storm and they found a late winner. So I think United की history में it will go down as an important win simply because जब एक आपका rivals, एक तो उनका success बहुत होती है और वो आप पे बहुत हावी हो जाते हैं. United needed that win. They found a way to win somehow. No complaints how they won. Just happy that they won. Hassan Azam, what are your thoughts and what were your key takeaways? Because हमने बात ज़रूर की थी and you did obviously see it. I'm not even sure हमें last show में आपने क्या prediction दी थी. I don't know if you remember that, but थोड़ी सी hesitance थी of course when we did talk about this match. Yeah. Were you expecting 2-1? No, if United had to win, it had to be a similar scoreline to be honest. और कुछ हम लास्ट शो में बात कर रहे थे कि यूनाइटेड एक तरह ही जीत सकती है कि अगर अर्ली किसी तरह गोल कर दे, वेदर करे वो स्टॉर्म को जितना लंबा हो सकता है. लिवरपूल फ्रस्ट्रेट होगा, दे गेट द गोल एंड ऑब्वियसली लक वाज इन्वॉल्व्ड एज वेल देयर. और फिर लेट विनर मैगवायर, वो तो लगता है मुझे आप स्टॉपेज टाइम पे या वो आखिरी 10 मिनट में स्ट्राइकर नहीं बुला लेते सेट पीसेस के लिए. अभी ज़्यादा उनका रोल ऐसा है यूनाइटेड के लिए. बट आई थिंक एक चीज़ हमें देखनी ये भी चाहिए, कुरैशी साहब ने बड़े मज़े के स्टैट्स शेयर किए. इस सीज़न 90+ शॉट्स लिए लिवरपूल और यूनाइटेड दोनों ने बिफोर कमिंग इनटू द मैच, सेम नंबर ऑफ शॉट्स एंड 36 शॉट्स ऑन टारगेट फॉर बोथ ऑफ देम. तो आई थिंक कहीं ना कहीं यूनाइटेड इस साल अंडर एमरिम बेहतर रहा इन टर्म्स ऑफ देयर अटैकिंग prowess एंड द न्यू साइनिंग्स एज वेल चिपिंग इन देयर. और सेकेंडली लिवरपूल पे भी वो प्रेशर था और पहली दफ़ा वो टीम अंडर प्रेशर आई है जहाँ पे वो कंसिस्टेंटली या तो लेट मैचेस जीत रही थी या पिछले 3 मैच हार कर आई थी इन ऑल कॉम्पिटिशन्स. तो अब वो प्रेशर शो होना थोड़ा सा शुरू हुआ है. लकी चीज़ ये रही यूनाइटेड के लिए कि जहाँ पे XG बहुत हाई था लिवरपूल का, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए उस चांसेस को. तो जहाँ हमने इतने लेट विनर्स खाए हुए हैं
तो शायद ये लक हमारी बनती भी थी थोड़ी सी टू इवन दैट आउट. आई थिंक दैट्स good for United. Rehan Amorim के लिए of course पहली दफ़ा since he became manager of United के वो back-to-back matches जीते हैं. How big is this win in this context for United considering के how poorly they had been going and last season तो बिल्कुल उनका जो है बहुत ही bottom पे they were looking at relegation. I think Radcliffe did back him इससे पहले भी, इन रिजल्ट से पहले भी, ये बैक टू बैक विन से पहले भी. बट आई एम नॉट श्योर कि आप अगर मेजर ओनर नहीं हो तो आपकी कितनी सेव हो सकती है. बट ही डिड बैक हिम पब्लिकली. बट द अभी जो ये विक्ट्री है मोरम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट यूनाइटेड की हसन ने जो बात की, प्रीमियर लीग के अंदर पर मैच शॉट्स उनकी सबसे ज़्यादा होना, यू नो अमंग्स द टॉप 3 टीम्स इन दैट डिपार्टमेंट. तो प्रोग्रेस यूनाइटेड की बहुत अच्छी है. प्रोसेस यूनाइटेड का इस सीजन इज़ फार बेटर देन प्रोसेसेस यू सीन इन द पास्ट. आई नो अमोरिम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि ही प्लेज द सेम फॉर्मेशन, डजंट चेंज, इट बिकम्स प्रेडिक्टेबल, एवरी टीम नोज व्हाट टू डू अगेंस्ट हिम. बट उस प्रोसेस के रिजल्ट्स आपको इस सीजन नजर आने लगे. फॉर एग्जांपल जो आर्सेनल के साथ इनका मैच था एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन, उस मैच के अंदर भी आई थिंक यूनाइटेड प्लेड रियली वेल. बट दिस मैच it was not part of that process. I believe this was an anomaly because इस मैच में एक्चुअली लिवरपूल, no matter what United fans say, and these two would agree with me as well, were the better team. Whereas Liverpool have been lucky in winning games this season. This time they were unlucky to lose the game. तो ये मैच आई थिंक बिकॉज एक राइवलरी उस तरह की है, तो इस मैच के अंदर आप you look at logic and you look at all those things, so sometimes logic goes out of the window because of the emotional burden, emotional pressure of such a match. Even जब United was the biggest English team by a country mile in the 90s and 2000s, early 2000s, तो उसमें भी for United to go away to Liverpool and win a match was difficult against really poor Liverpool teams. Only 2 times. Yeah, so basically Anfield पे जीतना 9 साल की बात करें, even Sir Alex Ferguson struggled with that a lot of times. So ये कोई ऐसा मैच यूनाइटेड नहीं जीत सकता जिसमें आप कहते हैं कि यूनाइटेड एनफील्ड जाके डोमिनेट करके जीतेगा. इट हैड टू बी लक. देयर वाज नो अदर वे दैट दे कुड हैव वन दिस गेम. एंड क्रेडिट टू यूनाइटेड के द वन थिंग दैट दे हैव डन रियली वेल दिस सीजन इज के आई थिंक इट्स बीन इनकरेज्ड एज वेल कि आप जो यूनाइटेड पहले United fans also complained about a lot of sideways passing in the past and slow build-up play and all of that. Now you're seeing quicker switches and quicker shots being taken. Instead of taking extra touches on the ball, you're seeing quicker shots, and that's why उनकी shot की जो percentage जो numbers हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं. And I think इसका end result इस match से तो नहीं आपको पता चलेगा, but these are good signs for United. But the last time anyone said these are good signs for United is when United came back against PSG, and we all know what happened after that. But let's talk about how far this कितना impact इस match का होगा, because Amorim की थोड़ा सा pressure जो था वो mount होता जा रहा था. Now these back-to-back wins will surely give him and the club give the club some breathing room until the next big match comes around. लेकिन कितना important होता है ये during a season for a club to have this kind of a cushion that allows you to sort of एक वो sense of relief evoke करना, खास तौर पे among the fans and among the ownership of the club कि नहीं, there are still positive signs and all is not lost right now. Rohaji, when you've gone almost 11 months without back-to-back wins, you cannot say that there is impact नहीं होगा. Impact तो होगा. अब एक तरह से pressure भी आएगा because you cannot now go and lose the game against Brighton at home. You'll undo all the hard work. You can take this as a great positive because like Rehan rightly said, even at their prime, United Anfield जाके बहुत matches नहीं जीतती थी. You have to build on this. तो there is breathing room, there is space. अब players में confidence आता है. आप जो भी कह लें, आपको फ़र्क ज़रूर पड़ता है, but you have to now make it 3 wins on a row. अगर आप वापस उन्हीं habits में आ जाते हैं and you don't utilize this win, then the pressure will be back. But yes, if you can make this as part of something that leads to improved results, not maybe किन हैबिट्स में आ जाते हैं? रेहान ने थोड़ी सी बात की देखिए रेहान ने, but आपके क्या हैबिट्स आते हैं? आपके पास पहले मसला था कि जी आप एक तो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं पहला गोल खाने का. Manchester United was in all these previous games with the previous keepers. I think it should be noted that ये fan base इतना टूटा हुआ है, हम इतने बेचारे मार खाए हुए लोग हैं कि a keeper doing normal things feels like the most incredible thing to our keeper catching a ball and lying down पे we celebrate कि आखिरी बॉल पे छक्का मार के हम वर्ल्ड कप जीत गए. It's literally that much for us. So United not making mistakes, not conceding goals. The bad habits are, like Rehan rightly said, they're taking more shots, faster shots. They're trying to be more aggressive and they are finding ways to be a little bit better in defense. You can't fall back into the habits of losing games after doing well. So United, if they really want to
get the best out of this result must go on some kind of a run where they're getting positive results in their favor. Only then. Otherwise वही होगा कि जो एक ज़माने लिवरपूल के लिए होता था कि टाइटल कोई और जीतेगा बट पूरे साल आप कहोगे जी हमने यूनाइटेड को जाके ओल्ड ट्रैफर्ड पे हरा दिया था. यूनाइटेड हैव टू बी वेरी ऑफ दैट. And they have to find a way to make this sustainable They and do, to make they do. this run as long as they possibly can. थोड़ा सा on the flip side बात करते हैं लिवरपूल की. A lot of criticism on Salah right now, जो कि थोड़ा सा ऑफ कोर्स उन्होंने मिस किए चांसेस काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट्स पे. बट इज़ इट जस्टिफाइड कि आप एक बड़े मैच के ऊपर जो है वो इतना हार्शली क्रिटिक कर रहे हो? हाउ फार डू यू थिंक दिस इज अ फेयर जजमेंट? आई थिंक जब आप टैलिस्मैन हो किसी भी क्लब के या किसी भी टीम में आप एक्सेप्शनल परफॉर्मर हो, तो जब व्हेन द थिंग्स स्टार्ट गोइंग साउथ तो आप पे सबसे पहले प्रेशर आता है. आई थिंक वी हैव सीन दैट विद क्रिकेट टीम्स, फुटबॉल टीम्स, ऑल द टीम्स. साला का इतना इनक्रेडिबल सीजन था लास्ट ईयर, इवन दो इट वाज अ सीजन marred by all that negotiation and contracts and all those things, but he was just silencing everybody with the way he was playing football and scoring goals and getting those assists and everything. इस साल क्या हुआ है कि जब वो सारी चीज़ें सेटल हो गई और वो डिबेट सेटल हो गई कि साला की उम्र ज़्यादा हो रही है और सारा कुछ, तो अब फैंस कह रहे हैं कि वो उसी परफॉर्मेंस लेवल्स पे उसी तरह करता रहे सब कुछ. ये नहीं हो सकता. इट्स इम्पॉसिबल. ही इज़ ह्यूमन एज वेल. सेकेंडली अभी रेहान ने भी ये बात की है कि जब आपके हाई प्रेशर गेम्स आते हैं तो बेशक आप मोहम्मद साला हो, प्रेशर आपके ऊपर भी पड़ेगा, स्पेशली अगर आपके टीममेट्स भी मिस कर रहे हो चांसेस. तो दैट टेकिंग दैट चांस बिकम्स डबली डिफिकल्ट. हाँ, कहीं ना कहीं उन पर क्रिटिसिज्म ये आप ज़रूर कर सकते हो कि जो एनर्जी नॉर्मली साला की आपको नज़र आती है वो नहीं आ रही. लेकिन जब प्लेयर्स का एक्सेप्शनल सीजन एक जाता है ना, हमने बेलिंगम के साथ भी ये देखा जब रियल मैड्रिड के साथ उनका एक्सेप्शनल सीजन गया, फिर यूरो में जिस तरह वो किया, चैंपियंस लीग गया, एवरी प्लेयर इज बाउंड टू गेट टायर्ड एंड देन नीड सम एक्सटेंडेड ब्रेक टू रिकवर फ्रॉम दैट. सला का भी जिस तरह का सीजन गया और फिर मतलब जो सीजन के दरमियान ब्रेक आई, जितनी उन्होंने फुटबॉल उसके दरमियान भी खेली, दिस ब्लिप वाज बाउंड टू हैपन. आई थिंक किसी हद तक इट्स अनजस्टिफाइड दिस एक्स्ट्रा क्रिटिसिज्म. एंड ऑब्वियसली अब प्रेशर की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, इवन नाउ आर्नी स्लॉट इज गोइंग टू बी फीलिंग दैट प्रेशर आफ्टर द 4th स्ट्रेट डिफीट. और ये भी बहुत एक रेहान आप भी बेहतर बता सकते हैं कि लिवरपूल के लिए ये कितनी रेयर चीज़ है इस कॉन्टेक्स्ट में और कैसे वो इस प्रेशर को हैंडल करेंगे अब आगे. देखें, even last season on this show I had also mentioned the fact कि Liverpool are a really good team, there's no doubt about that. But previous Premier League winners अगर आप 10 साल के उठाएं ना, तो लिवरपूल की पॉइंट्स टैली, लेस्टर सिटी की पॉइंट्स टैली आर टुवर्ड्स द लोअर साइड, वेयर एज मोस्ट टीम्स हैव वन विद 90+ पॉइंट्स. खासकर जब से पेप आए हैं तब तो 99 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स यहाँ तक भी बात गई है. तो पिछले साल लिवरपूल के ऊपर हमेशा दे हैड दिस गैप बिटवीन देमसेल्व्स एंड द सेकंड प्लेस टीम. अ गैप इनफ कि वो अगर एक या दो मैच हारते भी तो दे वुड हैव स्टेड टॉप ऑफ द टेबल अ लिटिल कंफर्टेबल. नाउ यू आर सीइंग दैट फ्लिप. सीजन के स्टार्ट के ऊपर अक्सर लोग ये बात करते हैं कि it's a good sign when a team is not playing well and winning matches, and everyone kept saying that Liverpool won 5 games in a row, but everyone saw they're not playing well. ये problem इस चीज़ की पता क्या है, जो you always come back to the mean, you always fall back to the mean कि अगर आपकी performance level इतना है तो अगर आपको lucky results मिल रहे हैं तो unlucky results आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे. Because basically law of averages के मुताबिक आप there will come a point जब वो आपकी जो shot पोस्ट को ला के अंदर जा रही है वो पोस्ट को ला के बाहर जा रही होगी. तो ओवरऑल आप 90 मिनट्स में टीम परफॉर्मेंस लिवरपूल की उस तरह से नहीं थी पहले 5 मैचेस के अंदर, और प्रेशर बहुत होगा स्लॉट के ऊपर. आई जस्ट थिंक दैट दिस सीजन द कंपटीशन दैट लिवरपूल आर अप अगेंस्ट इज फार बेटर देन लिवरपूल वर इन द पास्ट. एंड आई ऑल्सो थिंक कि जब आप इन्वेस्ट इतना हेविली करते हैं ना, पिछले साल जब आए थे तो वो एसेंशली क्लॉप की टीम थी जिसमें एक साइनिंग हुई थी. इस साल जो पैसे खर्चे हैं वो आर्ने स्लॉट ने खर्चे हैं, तो उनके मतलब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है. अब हो क्या रहा है कि क्योंकि फ्लोरियन वर्ड्स के ऊपर इतना ज़्यादा वो प्रेशर था, एंड यू नो इंग्लिश पंडित्स का ये आदत है कि वो बिल्कुल ही कह देते हैं कि जी ये कुछ भी नहीं कर रहे, तो प्लेयर नहीं, क्योंकि बाहर से प्लेयर आता है. तो टीम बिल्ड होनी चाहिए एक ऐसे बंदे के इर्द जिसके आप 10 साल और बिल्ड कर सको, ठीक है, या 5 साल और बिल्ड कर सको. मो साला ग्रेट प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, बट उनके इर्द गिर्द आप टीम बिल्ड नहीं कर सकते. अब यू नीड टू लुक past that, and we've seen that in every sport. 1 year too much, 1 year too many. आप अगर पास्ट में फुटबॉल वर्ल्ड कप देखें कि 2006 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम की 2010 में क्या परफॉर्मेंस थी, 2010 की टीम की 14 में क्या परफॉर्मेंस थी, तो दिस हैपन्स कि होता है कि मैनेजर एक प्लेयर को ट्रस्ट करता है
एंड समटाइम्स वो थोड़ा सा जो उसकी वो है ना टाइम उससे एक्सटेंड कर जाता है. तो ही स्टिल अ टॉप प्लेयर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. मतलब इवन नाउ आई थिंक ही इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, बट यू डोंट बिल्ड अ टीम अराउंड a guy who's 30 plus. You build a team around a guy who's going to be, you see the future in this guy. Okay, fine, we lose the first 3-4 games. Fine, ये बंदा अब आके इसके इर्द गिर्द हमारी टीम बनानी है. तो आई थिंक लिवरपूल को थोड़ा सा वो देखना चाहिए कि रिजल्ट ओरिएंटेड के बजाय गो, एंड दैट्स व्हाई एवरीवन सेज डिफेंडिंग अ टाइटल इज मोर डिफिकल्ट देन विनिंग योर फर्स्ट वन. बिल्कुल, एंड वी विल ऑफ कोर्स टॉक मोर अबाउट लिवरपूल एज वेल. अभी थोड़ा सा एक और जो रिजल्ट भी है, थोड़ी सी न्यूज़ भी है. बट चेल्सी ने 3-0 हराया जी नॉटिंघम फॉरेस्ट को, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे जो कि हम सारे ही एंटिसिपेट कर रहे थे, लेकिन एंजी हैज़ बीन सैक्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आफ्टर दिस लॉस, एंड दिस वाज प्रीटी मच ऑन द टेबल एज वेल. और काफ़ी इमोशनल तो नहीं, खैर एक फुल ऑफ I don't know if we should call it impulse. Yeah, it did evoke a lot of feelings for owner के साथ, and of course in the whole club as well. But this is the shortest stint ever for a permanent Premier League manager, which is only 39 days. So that, how do you process this? I think थोड़ी सी गलती हमारी है. If we'd had time to have a rant about it, if you remember with Tottenham last time, we went on a 7-game winning streak. So sorry, Ange, better luck next time. The thing is that even hiring him in the first place, like you said, was an impulsive decision. Getting rid of a manager who had done so well. So it almost looked like Ange needed the results immediately. वो आए ही नहीं, वो performance ही नहीं उठा. फिर आप home पे उस तरह की टीमों से competitions में, यूरोपा लीग में और प्रीमियर लीग में हार रहे हो जो लोग शायद आपसे नहीं expect कर रहे थे. The pressure kept building. Rehan spoke very importantly earlier on about emotion in football. It was an emotional decision to hire the manager. It was an emotional decision to get rid of him. And it's been 40 days that have set the club backwards in a long way. And Nottingham Forest last year, agar hum unhe dekhein, so they did very well for themselves for what was expected of what is a storied club in England. It is a club with Champions League titles. It is a club that has done very well. So it didn't make any sense. Will they get it right with the next manager? Will we be here in another 45 days talking about another potential sacking? Because it doesn't look like at the moment the owners know what they want or can actually do what the club needs. And just on that, who are the contenders for this next role? और क्या impact उनका होगा अब इस नहीं new allocation का on the club, on Nottingham Forest? Because last season they did surprise a lot of us with their performance. Mid season तक तो सब चीज़ें I think ठीक ही चल रही थी, उसके बाद से ही downfall आना शुरू हुआ है. क्या what's next for Nottingham Forest? I think even towards the end of the season, I mean, आप सोचें as a Nottingham Forest fan, जहाँ पे आप एक वक्त Champions League के spot के लिए लड़ रहे हो, and you narrowly miss out, and then next season within a few months everything completely changes and you're wondering like what happened here. अभी तो contender Sean Dyche हैं जो Everton से भी sack हुए थे last year. सबसे ज़्यादा उनका ही नाम आ रहा है क्योंकि जिस पोजीशन में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अपने आप को इस वक्त खड़ा कर दिया है, दे डोंट हैव मच ऑप्शंस टू गो विद एज वेल, टू बी ऑनेस्ट. और कहीं ना कहीं कसूरवार जो है वो उनके टीम ओनर भी हैं, मैरिनाकिस. उसकी वजह ये है कि जब उन्होंने नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर हायर किए और उनकी नहीं बनी कोच के साथ, और इनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था अपना कोच के साथ, उन्होंने ही ट्राइड फिक्सिंग समथिंग विच वाज नॉट ब्रोकन, एंड यू नेवर डू दैट. और अब उन्हें क्योंकि जिस तरह वो फिक्स करनी पड़ेंगी चीज़ें, अभी तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के फैंस के लिए ये है कि कोई ऐसी परमानेंट साइनिंग आ जाए या कोई ऐसी साइनिंग आ जाए जो उन्हें रेलीगेशन बैटल से इस वक्त बाहर निकाल दे. मेन इस वक्त इनकी हेडेक ये है कि यहाँ इसको कैसे अवॉइड किया जाए. बिल्कुल, क्योंकि जो कहीं उनकी टीम में ऐसे प्लेयर थे, बिग क्लब्स वांटेड देम. मॉर्गन गिब्स वाइट टू नेम वन ऑफ देम, एलिट एंडरसन, वो अब इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं, जो उनके मिडफील्ड के माइस्ट्रो रहे लास्ट सीजन. तो आपके लिए अगर आपने टॉप 10 में ना फिनिश किया, जहां आप एक वक्त इतने हाई थे, अब आप स्ट्रगल करोगे नेक्स्ट सीजन टू इवन कीप अ होल्ड ऑफ योर बेस्ट प्लेयर्स. सो द इक्वेशन हैज कंप्लीटली स्विच्ड अराउंड. ट्रबलिंग टाइम्स एट नॉटिंघम फॉरेस्ट. बट हम कल के शो में भी अपने यही बात कर रहे थे कि कैप्टन्स जब बार बार चेंज होते हैं उससे टीम को और प्लेयर्स पे क्या इम्पैक्ट आता है. एंड नाउ जस्ट रेहान, व्हाट डू यू थिंक द प्लेयर्स मस्ट बी गोइंग थ्रू, और जो भी अब इनकमिंग मैनेजर है उनके ऊपर कितना प्रेशर है कि ऑलरेडी एक टीम डीमोरलाइज्ड है, ऊपर से अब आप बार बार एट द हेल्म कोई और आ रहा है हु इज कॉलिंग द शॉट्स. हाउ विल दिस इम्पैक्ट द प्लेयर्स? आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो हैविंग टॉक टू
एथलीट्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के भी कुछ मेंबर्स, जो भी सिस्टम्स होते हैं ऐसे जिनमें स्टेबिलिटी नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते। आपको शॉर्ट टर्म गेन मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म आपको उसका लॉस ही होगा। और ये एक मतलब इतना ज़्यादा सैम्पल साइज है अक्रॉस स्पोर्ट्स, फ्रॉम NFL, NBA, फुटबॉल, क्रिकेट, एनी स्पोर्ट यू गो टू, आपको वहाँ पर ये नजर आएगा कि स्टेबल सिस्टम्स प्रोड्यूस स्टेबल रिजल्ट्स, इनस्टेबल सिस्टम्स प्रोड्यूस केओस। मुझे याद है लास्ट सीजन भी जब रेहान नॉटिंघम फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे तो यही उन्होंने यही एनालिसिस दी थी कि देयर गोना कम क्रैशिंग डाउन, अभी जितना ये एंजॉय कर सकते हैं ये कर लें। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मतलब आप ये नहीं करते कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने मतलब एक अच्छा ड्राइवर आपको मिला है, फॉर एग्जांपल एक कंट्री के अंदर जिधर ट्रैफिक बहुत नॉर्मल है, बहुत सीधी लेन्स के अंदर गाड़ियाँ चल रही हैं, और फिर उसको आप पाकिस्तान ले आएं और सीधा लाहौर या गुजरांवाला की सड़कों पर ले जाएं, तो एंज जो है उसको एक सर्टन टाइप ऑफ प्लेयर चाहिए, उसकी जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल है उसके लिए आपको वो टाइप ऑफ प्लेयर्स चाहिए, और वो आप उसको लेके आए हैं। एंड आपकी जो साइनिंग्स और जो आपकी मेन प्लेयर्स हैं स्टेक टीम के अंदर, वो खेलते हैं वो हैंड ब्रेक फुटबॉल, काउंटर अटैक के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने वाला, तो आप जो फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे हो वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आप पहले फुटबॉल खेल रहे थे उससे, तो वो ओवरनाइट चेंज नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी कोई मैनेजर फुटबॉल में आके कहे ना कि मैं तो हर साल ट्रॉफियाँ जिताता हूँ, तो उस साल सैक होने लगा। मतलब वो टेन हाग हो या एंज हो, मतलब क्योंकि फिर दैट्स ऑलमोस्ट लाइक यू डिफेंडिंग योरसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज यू नो देयर समथिंग रॉन्ग, यू डोंट नीड टू डिफेंड योरसेल्फ समथिंग राइट। एंड ये चीज़ बेसिकली इसका जो मास्टर प्लेयर है ना, ये तो एंज वगैरह तो इस मामले में बच्चे हैं, टेन हाग, वो जोजे है। मोरिनियो यूज्ड टू डू दिस कि मोरिनियो वुड से कि अच्छा तुम सारे मिलके जितने जीते हो उतना तो मैं अकेला जीता हूँ, एंड मास्टर ऑफ दिस माइंड गेम्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो मरीनियो का ये करता था, पर उसको ये सूट भी करता था बिकॉज वो 2 चैंपियंस लीग जीता हुआ था और वो बाकी बहुत कुछ कर चुका हुआ था। बाकी मतलब आप यूएफए कप जीतना और लीग के अंदर 16-17 फिनिश करना इज़ नॉट अ कंसिस्टेंट थिंग। यू वन अ कप कॉम्पिटिशन जिसके अंदर आप वन ऑफ मैचेस जीत कर आप आगे जाते रहे हो, वेयर एज इन अ लीग आपको कंसिस्टेंटली अक्रॉस 38 गेम्स अच्छा करना पड़ता है। चलें, वील टॉक मोर अबाउट नॉटिंघम फॉरेस्ट एज वेल, बट राइट नाउ चेल्सी की भी थोड़ी बात करते हैं। ऑफ कोर्स हम जो मैच जीते हैं उनके ऊपर हमने ज़्यादा अपनी डिस्कशन की नहीं है, बट सैड न्यूज़ जो है वो ये थोड़ी आ रही है कि कोल पामर कुड बी आउट फॉर 6 weeks at least. So what does this mean now for Chelsea? Because of course we know how much they rely on Palmer to get them those I think for goals. Chelsea, getting a result without one of their best players will give them confidence. Obviously, Cole Palmer is a kind of player you don't want to miss. But over time, हमने ये last time भी बात की थी जब हम सब इकट्ठे थे कि थोड़ा haphazard है, but Chelsea have signed some very good players. So it's not like they lack good players who can go on and do well. Yes, you're missing Palmer, and yes, it was Forrest under Ange, but Chelsea के पास एक थोड़ी सी coherent style of play लग रहा है. They are playing better football. They have the personnel to do better. Maresca is a capable coach. So while you will miss Palmer, you still have enough quality in your team to expect to do well. कि जब वो वापस आते हैं, you should be in a good enough position to utilize his return and get better results. हसन, पामर के ऊपर पामर आई थिंक अभी तो वो टैलिस्मैन है। आई मीन पामर उस तरह का प्लेयर है हु कैन गिव यू अ मोमेंट इन द मिडल ऑफ द गेम, इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स टर्न द गेम अराउंड। तो एनी टीम वुड मिस दैट, लेट अलोन चेल्सी। लेकिन बार बार हम बात करते रहे, इस सीज़न भी आई थिंक चेल्सी का स्क्वाड और सोलिडिफाई हुआ है, तो उन्हें ये ढूंढना भी है। अगर आप एक प्लेयर के गिर्द टीम ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन आप एक प्लेयर के गिर्द खाली विन्स नहीं अपनी काउंट कर सकते। चेल्सी अभी विट्स की जिस तरह बात हो रही थी, चेल्सी के लिए वो कोल पामर ज़रूर है, बट दैट डजंट मीन ही इज़ योर ओनली ऑप्शन टू विन गेम्स। एंड आई थिंक जिस तरह ख़ास तौर पे उन्होंने अपने स्ट्राइकर एंड को सोलिडिफाई किया इस सीज़न, they they'll do well. Chale, let's talk about another important result. Arsenal are back at the top of the table. Their win against Fulham will give them that confidence because obviously हम बात कर रहे होते थे कि grinding out results इसका क्या मतलब है, and Arsenal really put that into that application beautifully. और हमने बार-बार Arsenal की तरफ से ये push देखा है, but now they're at the top. Do you also still agree कि if this season they don't take the title, there is something seriously wrong with this team? एक तो नंबर 1 आई थिंक पिछले साल उनकी स्क्वाड डेप्थ नहीं थी। मतलब सीजन के स्टार्ट में भी दे वर नॉट, मतलब मैन सिटी की बात करते हैं, मैन सिटी फेल ऑफ अ क्लिफ आफ्टर द फर्स्ट 7-8 गेम्स, वेरी सिमिलर टू सिटी। जो लिवरपूल का सीजन स्टार्ट है वेरी सिमिलर टू दैट सिटी का लास्ट सीजन था, और एकदम उनके भी रिजल्ट्स ख़राब होना शुरू हुए थे। आर्सेनल की स्क्वाड डेप्थ बहुत ज़्यादा है।
अभी भी I think they don't have the best starting 11 if everyone's fit, but I do think they have the best squad in the Premier League. तो इस स्क्वाड के साथ आपको एटलीस्ट जो है वो क्लोजर चैलेंज देना चाहिए जितना आपने इन द पास्ट दिया है. एंड अभी जो आप लिवरपूल की हालत देख रहे हैं तो आर्सेनल के पास बहुत अच्छा चांस है. यू आल्सो नीड टू लुक एट योर राइवल्स. मैन सिटी की बात करें, मैन सिटी आई नो उनके पॉइंट्स हैं और दे विनिंग गेम्स अगेन, बट मैन सिटी आर नॉट द फिनिश्ड मैन सिटी दैट पेप वांट्स राइट नाउ. देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन दैट मैन सिटी टीम. तो ये आर्सेनल के लिए ऑब्वियसली अगर आप मुझसे पहले पिछले 5 साल का पूछेंगे तो आई थिंक ए लिटिल हार्ड्स ऑन आर्टेटा, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि उससे बेहतर किसी के पास स्क्वाड है. इस सीजन आप आर्टेटा को एक्चुअल क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि अगर वो नहीं जीते टाइटल तो ही हैज़ द बेस्ट स्क्वाड. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट आर्सेनल दिस सीजन इज द नंबर ऑफ गोल स्कोरर्स दे हैव हैड. मतलब उनका आप मैन सिटी देखेंगे ना, एक बंदे ने 11 गोल मारे हैं, बाकी सब ने एक गोल मारा हुआ है. इनकी टीम में एक बंदे ने 3 मारे हैं, 2, देन द नंबर ऑफ गाइज हु स्कोर्ड 1 goal each in every match. And I honestly think this argument, मतलब people make this argument कि you need number 9s goal scorers and as such ना, but आप पिछले 10 साल की फुटबॉल उठाकर देख लें, yes, Messi, Cristiano, Haaland, these type of players are there, but a lot of teams have won titles without one guy completely shining and scoring 20, 25 plus goals in a league season. So it's what system suits that particular team. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही नंबर 9 चाहिए. मतलब you can play without a 9, someone who doesn't score 20 goals. मतलब City got to 97, 98 points without anyone scoring 30 goals. But Haaland will score 30 goals almost every season. So I mean, at the end of the day, आपने देखना है उस सिस्टम में जो आपका ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है उसमें what fits the best. I think Arteta's gotten it right at the moment. The real test comes के फर्गसन की एक क्लास की बात ये थी कि जब फर्गसन की टीम हारती थी ना, फर्गसन नेवर थ्रू हिज प्लेयर्स अंडर द बस, बट ही वुड कलेक्टिवली से कि मेरी टीम ने आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया एंड वी नीड टू अप आवर गेम. आई हैव नेवर हर्ड आर्टेटा नॉट बीइंग प्राउड ऑफ हिज टीम. मतलब हाउ कैन यू ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर टीम. तो ये जब रिजल्ट्स पूरे होंगे ना, दैट्स हाउ यू मतलब दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज कि वो अस वर्सेस वर्ल्ड वाली मेंटालिटी जो है ना, वो 4 साल चला लिया आपने, बट अब आपके पास वो स्क्वाड है. तो अस वर्सेस वर्ल्ड से ज़्यादा इस टाइम आपको ज़रूरत है कि वी आर बेटर देन एवरीवन एल्स. And to prove that, of course, आपने बड़ा अच्छा point raise किया squad depth का. But how will Arsenal now going forward be dealing? So far they've dealt pretty brilliantly despite some of their key players being injured. लेकिन squad depth कितनी ज़रूरी होती है for a team in a season to really play the long game and go till the deeper end of the season without some of their key players being fully fit, लेकिन फिर भी having the confidence to win games and stay at the top. So a very important point Rehan made with squad depth was when he spoke about Alex Ferguson. आप अगर देखें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की हम सक्सेस में, we obviously talk about the well-known names. You talk about your Cantonas, your Giggs, your Beckhams and Rooneys, but many games, many games, Hassan and Rehan will back me on this, United would play against maybe not the best opponents, and usme a guy like Solskjaer or Chicharito Hernandez or players like John O'Shea and others would come in and they would do a job for that game, leaving the other players to focus on the big games, Champions League games, games against Liverpool, Arsenal, etc. Squad depth का मतलब ये होता है कि आपके पास वो players होते हैं कि if you feel one of my top players is struggling, मैं उसको निकाल के किसी और को अगर मौका दे दूं तो he's good enough to go get a win. System, another very important point by Rehan. Right now, आप देखें, Arsenal have gone back-to-back games without conceding a shot on target. The last time they did that was the last time they won the league. People are complaining they're only scoring from corners. अब उनका एक system है, वो चल रहा है. The big test is going to be if someone finds a way past the system. Does Arteta have the ability to, think quickly, to change? And उसमें the squad depth comes in कि if one of your best players is not performing, are you brave enough to take him off and bring someone on who, like Rehan said, make a team that is more than the sum of its parts. It's not just 1 or 2 guys dominating, but 11 guys pushing through together. That's वहाँ पे फर्क पड़ेगा. And Arsenal right now will be very happy, but उनका टेस्ट exactly आगे जाके आएगा. अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, will you still be proud of your team and will they still be, using that fuel of us against the world? It's a fine line. Right now, Arsenal are doing very well, but it comes with pressure also. Let's see how long that reign continues for Arsenal. यहाँ पर एक break लेते हैं, but when we come back, we will continue the discussion on English Premier League.
Ji, welcome back. You're watching Sports Tonight, and this is the football special. We're in conversation with three of our football experts. और English Premier League की बात हो रही थी. We were discussing just before the break Arsenal का reign जो इस वक्त चल रहा है, and do they have what it takes to go all the way in this season? Well, our experts seem to think so. लेकिन कहाँ तक जाते हैं Arsenal, and just behind them, of course, we know कि Liverpool and City will be trying their very, very best to close the gap as soon as they can. लेकिन not far behind our Bournemouth. अगर हम Bournemouth की बात करें, in that last game against Crystal Palace, 6 goals scored. Quite a match, quite a goal fest that was. But what does this win against, what does this result against Crystal Palace mean for Bournemouth? आई थिंक बॉर्नमथ तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे बिकॉज एक वक्त में लग रहा था कि उन्हें ये मैच जीत जाना चाहिए, स्पेशली 3-2 में आप यूर ऑलमोस्ट अबाउट टू क्लोज दैट गेम और फिर एंड पे पेनल्टी गिव अवे इज नेवर समथिंग यू वुड एंजॉय एज अ टीम और एज अ क्लब. तो 97th मिनट क्रिस्टल पैलेस को इक्वलाइज करना, दे वुड हैव बीन थिंकिंग कि यहाँ 3 पॉइंट्स हमें और मिले होते, वी वुड हैव बीन सिटिंग प्रिटी सेकंड ऑन द टेबल. तो फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूर होगी बॉर्नमथ को, लेकिन हाँ उसके साथ साथ आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू चेरिश एज वेल, बिकॉज जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया है इस सीज़न, एक हमें एक कंसिस्टेंट कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं उनके गेम प्ले के अंदर, जो इरायोला पहले भी कर रहे थे, लेकिन पर्टिकुलरली इस गेम की बात करें तो वंस अगेन दे हैड अ रियली क्विक स्टार्ट टू द गेम, और वो दूसरी टीम पर बहुत जल्दी अटैक करना और प्रेस करना शुरू कर देते हैं और चांसेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. इट्स द स्पीड ऑफ देयर अटैक, इट ऑलमोस्ट पुट्स ऑपोजिशन ऑफ बैलेंस and puts their tactics and strategy off balance, because it's almost like a sprinter coming out of a block as soon as the gun sounds. That's how Bournemouth is playing right now, and that's what the results seem to show as well. Another that type of game, but I am sure they must be hugely frustrated to not get a win here. Rehan, आपके क्या thoughts हैं? How far do you think Bournemouth can go or will go in this season? देखें, एक चीज़ तो ये है कि हसन ने आज गाड़ी में जब हम आ रहे थे तो हसन ने मुझे बात की कि बॉर्नमथ के स्टैट्स इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग द गेम, तो आई हैडंट लुक्ड एट देम दैट क्लोजली. तो हसन ने जब मुझे बताया तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्यों है ये ऐसा, कि वाई आर दे प्लेइंग दिस वे. एंड जो इनके मैनेजर हैं रियोला, ही कम्स फ्रॉम बिलबाओ, और एथलेटिक बिलबाओ के लिए 500 प्लस उनके पेरेंट्स हैं. अगर आप एनीवन हु फॉलोज स्पेनिश फुटबॉल अ लिटिल बिट, तो अगर आप बिलबाओ के अगेंस्ट मैच खेल रहे हैं उनके स्टेडियम के अंदर, तो द एटमोसफेयर एंड एवरीथिंग इज़ वेरी हाई इंटेंसिटी, एंड द फर्स्ट 10-15 मिनट्स ऑलवेज एट दैट क्लब. उस क्लब की आइडेंटिटी है, नो मैटर आप जितना मर्जी बोरिंग मैनेजर ले जाएं, जोजे मरीनो, राफा बेनिटेस भी ले जाए ना, तो वो उसी तरह खेलेंगे. मतलब उनके पहले 15 मिनट आर वेरी हाई इंटेंसिटी. सो आई थिंक ही टेक्स दैट फ्रॉम वेयर ही कम्स फ्रॉम, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब आप वी टॉक अबाउट टैक्टिक्स एंड वी टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. इंग्लैंड में अक्सर एनर्जी वगैरह की बात होती है, बट अक्रॉस यूरोप आपकी मोस्टली टैक्टिक्स की बात होती है. इंग्लिश फुटबॉल इज़ मोर पैशन, ये वो. पर वो जो पैशन का वर्ड है ना, मतलब अगर आपने किसी क्लब के साथ वो लगाना है तो बिलबाओ, एंड बिकॉज द मैनेजर कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, आई थिंक ही इज़ पुट दैट इनटू हिज मैनेजरियल फिलॉसफी एज वेल. और इसकी खूबसूरत बात यह है कि स्पेन में अगर ला लीगा आप फॉलो करते हैं, आई एम सॉरी आई एम गोइंग बैक टू ला लीगा अगेन, रायो वायोकानो एक टीम है, एंड मतलब उनका निकनेम है द माइटी रायो वायोकानो. सो बेसिकली देर अ वेरी स्मॉल क्लब इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मैड्रिड. तो ही यूज्ड टू मैनेज देम पहले, एंड दे वर द मोस्ट इन्जॉयबल टीम टू वॉच. मतलब ये 3-3 वाले रिजल्ट्स जो हैं, इस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते थे, एंड दे वुड टेक ऑन रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, मतलब फेस ऑन कि ठीक है तुम 3 करोगे हम 4 गोल करेंगे. मतलब दैट्स हाउ दे यूज्ड टू प्ले. एंड देन ही हैज़ सो मेनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्ले. मतलब because he played at Bilbao, because then he did his degrees and all of that from different places, he has developed all these different hybrid model styles where he can launch the ball long वगैरह, सारी वो फुटबॉल खेल सकते हैं. बट द थिंग इज़ कि इंग्लिश फुटबॉल जो क्लेम करती है ना कि हम हैं, वो एक्चुअली में ही इज़ वन मैनेजर हु कैन ब्रिंग दैट बैक इनटू इंग्लिश फुटबॉल. एंड आई थिंक जो इंग्लैंड का एक मसला भी रहता है कि व्हेन दे गो एंड प्ले इन यूरोप एज वेल, तो ये लोग कहते हैं ना हम हाई प्रेसिंग आए, पर आप प्रेसिंग नंबर इंग्लैंड के देखें तो इंग्लैंड के प्रेसिंग नंबर्स आर नॉट दैट इंप्रेसिव. लाइक अक्रॉस यूरोप अगर आप टॉप लीग देखें, येस फिजिकलिटी ज़्यादा है, येस फाउल्स रेफरी उतने नहीं देते जितनी बाकी लीग्स में देते हैं, लेकिन इनकी प्रेसिंग इंटेंसिटी अब बिकॉज ऑफ फॉरेन मैनेजर्स बेहतर होने लगी है. बेहतर हो सकती है. Hassan Qureshi Saha, what are your thoughts? Crystal Palace will be pleased with what they made out of this match, of course, with Bournemouth being 2-0 up in the first half. Lekin how will they go on from this match, and what do they take away? And of course, what's next for Crystal Palace on that points tally? I think आप हमेशा when you end up saving a game,
in the very last moments, there is a kind of confidence that comes from it, irrespective आप किसको खेल रहे हो. I remember some years ago there was a lot of criticism from Chelsea fans because Manchester United got a late free kick which Fellaini headed in 1-1. Said you're celebrating like you won the World Cup. Not losing a match is a nice feeling. It's a better feeling than losing a match. So ek to wo, getting a late win. Then we've seen Palace. They've genuinely played very well this season. Thoda sa ek blip aaya. So this had the potential to kind of continue the blip, losing that game. It'll give them confidence going into the future games. They're still in a good position. They're definitely in a better position than they were last year. They're aiming higher this year. They have 2 trophies in the bank also to go into it. So they'll want to build on this. And agar hum match dekhein, to there were 1 or 2 really good opportunities that Palace had to be in a better position. Mateta in particular missed the kind of goal you don't expect him to miss when presented with an aerial chance. So I think they'll take more confidence from this. हार जाते तो ज़्यादा pressure होता, जीत जाते तो best होता. The second best result was to get a late draw, and it gives them an opportunity to just kind of be around where they are in the table and going forward push ahead. So let's take a look at another exciting result. City fans will be pleased, of course. Win is a win, but Everton के against 2-0 जीते हैं जी City. Pep Guardiola इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, because we have seen अभी race to the top is so narrow, it's still pretty tight. हम अभी देखेंगे points table के ऊपर भी एक नज़र. But what does this result mean for City now in the long run? I think just business as usual for this one, to be honest, because ऐसे results आप अगर एक City की championship winning side जो कि हम बार-बार देखते आए हैं, तो ऐसे games को आपको होता है कि आप kill करो और फिर dominate करो. मतलब you control the game, आप goals करते हो और उसके बाद आप lull कर देते हो game को and you enjoy possession, and Pep's teams are really good at doing that as one of those types of games. लेकिन I think Pep की जिसका रेहान बात कर रहे थे, I personally believe this City side is probably one of the best squads he has ever had. लेकिन ये अभी develop नहीं हुई उस तरह. अभी इनको ना अपने systems को इतना run नहीं किया. वो आप कहते हैं ना नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आप सिस्टम चेक्स गुजरते हैं ना, तो आप कहते हैं नाउ थिंग्स आर रनिंग स्मूथली. पेप स्टिल डूइंग दैट विद दिस साइड, बट ही हैज़ अ कवर फॉर एवरी पोजीशन. हालैंड, मार्मोश भी जब मिड सीजन भी उन्होंने अपनी बाइंग शुरू कर दी थी, उन्हें पता था कि ये लंबा बाइंग सीजन है मेरा. समर में भी उन्होंने बाइंग की, तो उनके पास अब हर जगह के कवर्स आ गए, बट इट्स एक्चुअली रनिंग दो सिस्टम्स. एंड आई थिंक सिटी आर गोना बी मच बेटर टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ दिस सीजन इन द प्रीमियर लीग एंड द चैंपियंस लीग एज वेल, because they would have found their solutions to a lot of questions they're trying to answer right now, and this is going to be another pretty strong showing from a Man City side. Yeah, do you agree? अभी तक system checks complete नहीं हुए हैं City के. Nowhere close. मतलब Man City, as Hassan mentioned, January से उन्होंने spend करना शुरू किया, और even अगर आप ये वाला मैच देखें और इनके बाकी मैचेस भी सीजन देखें, they are winning games. But it's not Manchester City, Pep Guardiola dominance in terms of even control of the matches. मतलब इस मैच में भी one thing that City have struggled over the last 1 year way more than they used to do in the past, and Pep Guardiola teams बहुत rarely ऐसा होता था, वो ये है कि if you see a dribbler against Manchester City ना, तो dribbler Manchester City, because they play a very systematic positional oriented game, so sometimes a dribbler, a player of that sort can completely cut them open. कि वो बाकी टीम से अगेंस्ट वो ड्रिबलर आपको बिल्कुल फारिग लगेगा कि वो मतलब एक ही चीज़ करी जा रहा है, एक ही चीज़ करी जा रहा है, तो ही स्टॉपेबल. बट इनके अगेंस्ट बिकॉज दे प्ले सच रिजिड प्लेसमेंट सिस्टम्स, तो you know other teams have figured that out and they're trying to do that and trying to go wide channels के दरमियान में रन बना, तो they did concede those chances, and their मतलब expected goals भी उनके is not like old City teams. I agree, squad depth City की बहुत अच्छी है, and manager of Pep's quality will eventually figure it out. The problem though is कि because आपके इतने नए प्लेयर्स आए और जो समर था उसके अंदर इन टीम्स को मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि क्लब वर्ल्ड कप था, तो आपको वो प्री सीजन मिला ही नहीं कि आप वो सिस्टम्स इंप्लीमेंट करो, तो आप वो सिस्टम्स आप सीजन के दौरान इंप्लीमेंट कर रहे हो, जिसकी वजह से ये भी आप देखने को इस सीजन आपको मिलेगा कि लॉट ऑफ टीम्स अक्रॉस यूरोप are firing their managers way more than you would in the first 10-15 games of the season, because आपको प्रो प्री सीजन का टाइम नहीं मिला. कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो छोटे क्लब से बड़े क्लब चले गए, बड़े क्लब से छोटे क्लब में जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो लेट आए क्योंकि उनको वेकेशन थी या वो XYZ उसमें जा रहा था. तो आई मीन दोज आर थिंग्स विच हैव अफेक्टेड मैनचेस्टर सिटी एज वेल. तो वो एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स आई हैव एवर हर्ड,
मैनचेस्टर सिटी के लिए डिफिकल्टी नहीं, मुश्किल भी काफ़ी होगा ये सारा। पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी अब एक नजर डालते हैं because of course that's where all the action lies right now. We've talked about the top four. We know the fight is pretty neck to neck right now. It's going to be Arsenal at the top, sitting pretty with 19 points. Just below them are Man City with 16 points. Bournemouth at number 3, 15 points for them. And bilkul breathing down their neck are Liverpool with also 15 points. Hassan, can you walk us through what the competition looks like right now? हमने top 4 की तो बात की है, but that middle part of the table where the action is continuing, and do you think there is still some surprise kicks that can happen in this part of the season now? I think Tottenham, हम बात कर रहे थे कि इस सीजन कितनी स्ट्रॉन्ग लग रही है, चेल्सी यू वुड एक्सपेक्ट टू बी इन द टॉप 4, लेकिन आप देखिए कि मतलब कि टॉप 10 में फ्रॉम 5th पोजीशन डाउन टू द 10th पोजीशन कितना कम गैप है. आई थिंक दैट टेल्स यू कि शायद इस सीज़न यू वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर टीम्स ज़्यादा पॉइंट्स ड्रॉप भी करें. और सेकेंडली अभी क्योंकि ऐसा पीरियड है इस सीज़न का कि कोई भी टीम इफ़ इट गेट्स ऑन अ गुड रन, अभी कुरैशी साहब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर रहे थे कि उन्हें 3 विन्स ऑन द ट्रॉट स्ट्रिंग करने चाहिए, तो एनी टीम हु कैन स्टार्ट डूइंग दैट राइट नाउ विल राइज अप. क्रिस्टल पैलेस लिवरपूल को ऑलरेडी हरा चुकी है, उनका बड़ा अच्छा स्टार्ट रहा है सीजन का. सनडरलैंड कम्युनिटी शील्ड लेके आई है, बिल्कुल. सनडरलैंड की आपने बात की, टॉटनम भी उसी तरह चल रही है. तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ good competition going on in that top table and top half of that EPL table right now, and but you'd always expect Arsenal, City, Liverpool to be amongst that top 3. And what about that number 4th spot, apart from of course Arsenal, City and Liverpool? कोई surprise entry हो सकती है अभी भी, do you think? Qureshi sir. अगर आप पूछना चाह रही हैं if I think United who is 1 point behind is going to get there, तो I'm going to not give an answer to that. But getting back to the important things, देखें बिल्कुल I think Hassan spoke about Tottenham who would have been saddened by their result, because अगर Tottenham अपना match home पे जीतती है, Tottenham is potentially looking at being in City's position. You cannot rule out Chelsea. Palace have been playing very well. Sunderland is a promoted team. I think it's been a long time since we've seen a promoted team make a start this good. तो बिल्कुल अब आप 1 या 2 मैचेस दूर हैं. अगर बोर्नमथ अपना अगला मैच नहीं जीतते, टॉटनम जीत जाते हैं, चेल्सी जीतती है, लिवरपूल जाती है, वो चेंज हो जाता है. सो आई थिंक टॉटनम एंड यू नो मे बी पैलेस, बोर्नमथ, they'll all be looking to hold on to those positions. It's a lot going on over here right now, and there's not that many 1 or 2 draws even for a team like Arsenal, and someone as far below them as say Chelsea with a couple of wins can come up to where they are. So the action will continue. लेकिन इस वक्त बॉटम पे भी रेहान इतना एक्शन है, स्पेशली एंजी की सैकिंग के बाद. द प्रेशर हैज रियली नाउ बिगन टू माउंट कि नीचे अब रेलीगेशन की तरफ कौन सी टीम्स हैं. बट हु डू यू थिंक, व्हिच टीम डू यू थिंक विल बी टेकिंग द ड्रॉप इन दिस सीजन? कुरैशी साहब ने जो बात की प्रोमोटेड टीम्स, कोई भी प्रोमोटेड टीम, पहले तो आपका ये होगा कि प्रोमोटेड टीम्स आर गोइंग डाउन. दिस सीजन बीन वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ दैट, बिकॉज प्रोमोटेड टीम के लिए इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि न्यू जो रूल्स हैं, फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स एंड यू नो प्रीमियर लीग की अपनी स्टिपुलेशन, उसमें ये होता है कि आप अगर नीचे से चैम्पियनशिप विन करके आ रहे हैं तो आपको अपने फाइनेंसेस शो करने हैं नए प्लेयर साइन करने के लिए. बट बिकॉज बाकी सारे क्लब्स जो हैं 17 क्लब्स आर साइनिंग न्यू प्लेयर्स एंड यू डोंट गेट टू साइन द सेम क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स बिकॉज यू हैव सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, तो आप फंस जाते हो. वेयरएज नॉटिंघम फॉरेस्ट का मॉडल ये था कि जब ये ऊपर आए थे तो इन्होंने कोई 13-14 लोन पे प्लेयर साइन किए थे, वो सारा कुछ किया था. अब लोन पे भी इश्यूज आना शुरू हो गए हैं. सो एनी टीम दैट सर्वाइव्स फ्रॉम गेटिंग प्रमोटेड इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज. इवन आई नो सनडरलैंड आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, बट ये ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे आपके यू नो रेलीगेशन बैटल में आप 3 टीम्स गेट स्टक के 14-15 पॉइंट्स हैं आफ्टर 12-13 गेम्स, एंड देन यू गो ऑन अ रन ऑफ 7-8 डिफीट्स इन अ रो, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. बट प्रीमियर लीग की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है कि आप हर सीजन ना जो एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है ना, दैट्स वन वे टू जज के लीग कितनी कम्पिटिटिव है इन टर्म्स ऑफ के आपकी टॉप टीम और बॉटम टीम में कितना फ़र्क है. तो इट्स बीन वेरी, मतलब ओवर द पास्ट फ्यू सीजन इट्स बीन वेरी वियर्ड कि प्रीमियर लीग में बहुत मेजर डिफरेंस है बिटवीन द टॉप टीम एंड से द बॉटम टीम. बहुत मेजर डिफरेंस आ रहे हैं. यानी सम रिजल्ट्स, मतलब हम डार्बी की बात करते हैं कि ये डार्बी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे, एंड ऑल दीज डिस्कशंस दैट वी हैड इन द पास्ट, that's because there's huge difference in quality from top to bottom. You do get the best players from other leagues, but आपकी अपनी लीग में competition
क्योंकि मनी का इतना आता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो गैप प्लग हो सकता है बिटवीन द बॉटम हाफ एंड द टॉप हाफ ऑफ द टेबल. I would love if West Ham stay up. मतलब just West Ham over the years, the kind of players their academy has produced, Right. the kind of joy they've provided watching as a football fan as well. So I would hope that West Ham don't get dragged into. They are already there, but I just hope that they get out of that relegation. चलें थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स ला लीगा. जेंटलमैन, एल क्लासिको ऑन द 26th. Of course, the pre-hype period is building up. Fans are excited. There's so much frenzy around this particular encounter. We know कि टेबल टॉपर्स हैं जी इस वक्त मैड्रिड भी और रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों. लेकिन कैसे ये दो जायंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अब इस कॉन्टेस्ट के लिए? देखिए, एल क्लासिको is an institution, it's an event कि आप, I think people who don't even follow football watch El Clasico. It's probably, for many different reasons, footballing and otherwise, you know, one of the greatest games on earth. And we've seen both the teams have had, you know, they've had their little blips, but they've also playing well. Mbappe, if I'm not wrong, scored in his 11th consecutive Every game game he scored, yesterday. And a new manager in Xabi Alonso, Barcelona as the champions. So they've had different preparations. Barcelona won a late game. Real Madrid have kept that winning run going. Beach mein obviously thode se blips bhi aaye hain. So it promises to be exciting, but I think all your preparation goes out the window when it's El Clasico. You can prepare for 100 different things. Nothing ever quite prepares you for that game in itself, uska jo magnitude hai. And over the years, हुआ है कि आप necessarily El Clasico एक या दोनों हारने से doesn't make a difference, but now I think it's become a little bit more of a mental game. I think, especially for Xabi Alonso in his first El Clasico, winning it would give him and the fans an incredible amount of confidence, even though I don't think हारने से season खत्म हो जाता है. But I think early on, winning it would give them a lot of confidence, whereas for Hansi Flick and his Barcelona team, winning El Clasico will be a justification of what they managed last year. So a lot of a lot of stake for both teams, and for a neutral, it's an incredible game. Hasan, Asif, what are your predictions going into this exciting, जिस तरह Hasan Qureshi ने भी describe किया, probably the greatest rivalry in sport, and watching it come alive on the 26th must be so exciting for the fans. But according to you personally, ये दो teams में who do you think is going to be just slightly ahead? I think Madrid has the edge right now. उसकी वजह ये भी है कि जो उनकी bench strength है इस वक्त in terms of injury free players, और जिस तरह वो भी खेल रहे हैं और एक रिदम में चल रहे हैं, क्योंकि इवन जाबी अलोंसो ने जब से वो आए हैं उनका थोड़ा सा सिस्टम ओरिएंटेड होता है. पहले थोड़ी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल होती थी जिसमें पोजिशनल प्ले इतना मैटर नहीं था करता, और गेम को थोड़ा सा कंट्रोल करना, ख़ास तौर पे लीड लेकर स्पेशली क्लीन शीट्स लेना रियल मैड्रिड के लिए, ये दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अलोंसो. और दूसरा, हांसी फ्लिक को भी लेट सेकंड येलो कार्ड दिया, टच लाइन पे नहीं होंगे वो, फॉर हिम नॉट टू बी देयर. और फिर आपके कुछ की मिडफील्डर्स, और आप लेवेंडोव्स्की की बात कर लें और प्लेयर्स जो 100% फिट नहीं है बार्सिलोना के लिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी आई बिलीव. तो आई वुड फेवर के Madrid is going to try and go and win that game and create that bit of gap between them and Barcelona at the top. दूसरी तरफ Barcelona चाहेगी, even if they come away with a draw in this game, they'll be happy with it, because वो करीब ही रहेंगे, and then it goes to the next week कि क्या होएगा अगले हफ्ते में. I think I'll favor Madrid on this one. Rehan, what are your predictions, Madrid or Barcelona? I hate the fact that Hassan said he'd favor Madrid, because Madrid always play better when they are the underdogs. Last season जब Clasico हुई थी तो Madrid were supposed to be the favorites and they were beaten 4-0 at the Bernabeu. Mbappe was caught offside for the record number of 9 times in a La Liga game. He scored, I think, a offside hat-trick or something. But ये देखें, the greatest show on earth जो मैंने देखा ना consistently. You expect big matches और आप कहते हो यार boring होगा big match. You know, you've seen a lot of matches, मतलब AC Milan Inter Milan का मैच हो रहा है या Inter Juve का मैच हो रहा है, 0-0 हो गया, 1-1 हो गया, not interesting at all. United Liverpool games, it's very rare that a Clasico is not high scoring. Very rare. And उसके अलावा जो Clasicos between 2009 and 2015 हुए थे, like in terms of show, Yeah, they were the greatest show on earth for 6 years. It was just unbelievable, the quality and all. और finally अभी दोनों टीम्स के पास स्क्वाड्स है ना, ये आपको वो वाली फील दोबारा आने लग गई. बीच में क्लासिको एक टाइम आया था where
Yes, both teams were good compared to the rest of the world, but right now you can say both of them would be amongst the top 5-6 teams in the world. Absolutely. मतलब बार्सिलोना का And एक that टाइम just आया था. adds to the entire frenzy जो create हुई है कि the quality is so high that And just one thing I'd like to say is कि एक प्लेयर है, उसने वर्ल्ड कप के फाइनल में हैट्रिक की है, उसने क्लासिको में हैट्रिक की है और उसने अपने पहले मैड्रिड सीजन के अंदर 40 प्लस गोल किए हैं एंड ही इज स्टिल क्रिटिसाइज्ड. एक प्लेयर है जो कि 18-19 ईयर्स का है, ठीक है, ही इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट ड्रिबलर इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ एंड ही गेट्स क्रिटिसिज्म, हिज पर्सनल लाइफ इज टॉक्ड अबाउट अ लॉट. जो ये मैच में एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है ना, वो एम्बापे एंड लामीन यमाल का मेरी नज़र में इसलिए है बिकॉज इससे पहले आपको कोई मतलब जो क्लासिको होती थी ना, इट वाज डिफाइंड बाय मेसी एंड क्रिस्टियानो, बट द criticism these guys get is also because I think the race card is there as well. I think that's definitely a thing they don't get the same recognition as some of the other players would. Putting a pause on the football discussion, it's time to look at paddle. That's right, all of you paddle fans at home will be super excited to know that Pakistan have qualified into the main rounds of the Paddle Cup being played in Qatar. I'm not sure if people even know in Pakistan के Paddle Cup एक हो रहा है, उसके बारे में हम क्या जानते हैं. और ऊपर से अब पाकिस्तान हैव क्वालिफाइड फॉर द मेन राउंड. नॉट अ सरप्राइज जितनी पैडल एकदम से खेली जा रही है पूरे मुल्क में, बट व्हाट कैन यू शेयर about this paddle cup being played in Qatar? I think this is the first Asian event जिसमें एक वाइडर नेटवर्क जो है उन्हें इनवाइट किया गया और पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल इवेंट है. एंड द अमेजिंग थिंग इज़ कि अगर आप मतलब पैडल से कनेक्टेड हो या आपने पैडल स्पोर्ट का नाम सुना हो, ऑल दिस पीपल हु आर व्यूइंग दिस, कि रिसेंटली एक बूम आया है, ऑल द मेजर सिटीज़ पैडल कोर्ट्स बनने लग गए, टूर्नामेंट्स होने लग गए और आपने कहा कि जी पाकिस्तानियों की प्लेयर रैंकिंग्स बनना शुरू हो गई और सारा कुछ, बट नोबडी वाज श्योर कि हम क्या इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार हैं. फ़नी इनफ हम जाते हैं पहले इवेंट में, अपने क्वालिफाइंग राउंड में हम चाइना को हराते हैं 3-0 and then China and Thailand we beat them 3-0 and 2-1 and we qualify for the main round जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और बाकी बड़ी बड़ी टीमें हैं, Wow. which is amazing because it's their first exposure and the way they've taken up this sport and the amount of enthusiasm we see, of course from Rehan as well, क्योंकि वो चुप ही नहीं होते पैडल के बारे में. अब जब से उन्होंने रैकेट How ले लिया excited है are you? How far do you think We're Pakistan surprised should that go? Pakistan's made it with Rehan being here. We thought he was going to be the first person leading the charge. आई थिंक पैडल का बूम पाकिस्तान में आया है और पैडल का बूम पूरी दुनिया में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बहुत स्पीड से आ रहा है. इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान रीचिंग दिस लेवल, ऑसम, ग्रेट. एज सून एज a sport becomes properly professional is when Pakistan struggles. अभी आपके पास ये जो रैंकिंग सिस्टम वगैरह ना, ये अभी आपकी मतलब अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में नहीं है. जब ये आप उनके कंट्रोल में आएगा ना, तब द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. द मोर अ स्पोर्ट गेट्स प्रोफेशनल, द मोर प्रोफेशनल पीपल यू नीड टू इन्वॉल्व, नॉट अनप्रोफेशनल पीपल. ठीक है, क्योंकि आप शुरू एक इस तरह करते हो और आप कहते हो यही लोग इनको लेके गए थे तो लेट्स गेट दीज गाइज इन. Doesn't work like that. The more professional it becomes, the higher the stakes become. And Pakistan. I will change. And I've seen, I go play paddle everywhere, and these guys, मतलब the young kids, 11 years, 7 years, 8 years, पाकिस्तान में बहुत genuinely बहुत talent है. I hope कि हम normal public के लिए भी open करें because paddle is a very expensive sport. So I hope that it gets open to everyone. People, मतलब there's talent, मतलब club के अंदर जो ball boys होते हैं, कभी-कभी वो शॉट्स खेल रहे होते हैं, आप परेशान होते हो कि यार ये इसने कैसे मारी है. Those guys should also get opportunities and I hope कि वो जब ये स्पोर्ट ज़्यादा प्रोफेशनल होती है पाकिस्तान के अंदर तो हम उसका बेड़ा गर्क ना कर दें जैसे हमने काफ़ी चीज़ों में की है. Do you play paddle, Qureshi साहब? I try and play paddle. I can't claim to be very good, but on Rehan's point about young people, young kids coming through, the incredible level of talent. My nephew Faiz Ahmed Khan, he's 12 and he just won an under 14 tournament in Punjab. You're seeing so many of these incredible kids who are coming up, and it's such a wonderful thing, a sport which is keeping kids away. It's making them active, it's making them play. But Rehan's other point is absolutely vital. अगर आप इसको grassroots पे लाते हैं, ज़्यादा बच्चों को involve करते हैं of all backgrounds, only then will we really see that burst of talent in Pakistan. अगर to an extent it remains a sport maybe like tennis or golf or others that are not accessible to everyone, उसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं. Gentlemen, thank you so much for your time and analysis. Really enjoyed discussing football with you and of course paddle
आप लोगों का बहुत शुक्रिया for watching, and before we wrap up, एक और reminder that please follow us across social media platforms, that is Facebook, Instagram, Twitter, X, whatever you use, and of course YouTube पे भी subscribe करें PTV Sports को, ताकि you can keep in touch with all of our BTS content, and of course engage with us and show support to us, which you have done brilliantly so far. So thank you so much for all of your support. This is Sports Tonight signing off. अपना बहुत ख्याल रखें. Good evening.